मेरा नाम है सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर देना। आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भाई मुकेश अंबानी की बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्पीच है अपने बेटे की शादी पे। तो वो हम सुनेंगे उन्होंने क्या स्पीच दी है, क्या क्या लोगों को बोला है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं आज की Our most valued family, friends and guests, especially our friends from around the world who have come from a long distance. Good evening. We have with us as our special guest today our spiritual and religious leaders. They have come specially to bless Anant and Radhika. आप सबको मेरा सादर प्रणाम और खूब खूब स्वागत। To all our guests today, on behalf of Neeta and me, I have to say that the Bharat took over and we could not welcome you as we would have liked to from our heart. So my apologies. We wanted to welcome each and every one of you, and I take this opportunity that Neeta, I along with Shaila and Viren welcome each and every one of you with a warm heart. In the Indian tradition, marriage is between two individuals, whereas a wedding is between two families and all their friends and dear ones. Therefore, we are profoundly grateful to all of you for sharing our joy and excitement at the auspicious wedding of Shubh Vivah Sanskar of Anant and Radhika. This is the final and the most auspicious ceremony of their divine union and the last wedding in our family. Neeta has worked very hard to curate a deeply immersive experience of India's rich culture and a spirit of a traditional Indian wedding. Over the next 2 days, participate wholeheartedly in the festivities and enjoy them to your heart's content. I am sure all of us together will make memories that will last forever. I must say that we have started well. I was overjoyed to see many of you dance rapturously in the Bharat ceremony as a part of the groom's procession. And only I thought that I could dance with my granddaughter, but Boris beat me to it. He had 2 daughters with him and he did a great job, Boris. So that truly was a hurricane, wasn't it? Now the calm has descended. It's time for the sanctified rituals of a traditional Hindu marriage in the presence of all our loved ones and well-wishers. On this long-awaited occasion, I invoke with utmost devotion the blessings of our Kul Devta, our Gram Devta and Ishta Devta and all the elders of the Ambani and the merchant families. The first to bless Anant and Radhika will be their doting grandparents, those who are with us today and those who are in heaven. Today I pray to the Almighty that Radhika and Anant be so blessed that their life together is filled with Sukh, Swasthya, Samriddhi and Safalta. Happiness, health, prosperity. I also pray for the good health and the limitless happiness and the boundless success for each and everyone present here and your blessings for Anant and Radhika. On this auspicious day, together with all of you, we invoke Panch Tattva, the 5 foundational elements of Mother Nature that nurture all life on planet Earth so that they offer strength and sustenance to the couple. सनातन धर्म में विवाह को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार मानते हैं। अनंत काल से विवाह व्यक्ति को समाज से, धर्म से और आध्यात्म से जोड़ता है। When marriage is performed according to the Sanatan Vidhi, it acquires the divinity of celestial unions. Just as Lakshmi resides in Vishnu's heart, Anant will always keep Radhika in his heart. This will make their married life
beautiful, blissful, smooth and cultured. The Vedas regard marriage as a duty towards humanity. Marriage is the basis of a family. Family is the basis of community, and community is the basis of society and the larger human family. Marriage thus becomes the most essential guarantor of the continuity, cohesion and well-being and progress of the human race. Therefore, the matrimony of Anant and Radhika commits them to serve humanity as a whole. Friends, guests, ladies and gentlemen, the air is filled with spiritual aroma. Gods and goddesses have descended from heaven into this Vaikuntha Lok. All of you have settled. And now, with your blessings and good wishes, let us begin the most pious ceremony of Shubh Vivah. Thank you. Jai Shri Krishna. जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने, मुकेश अंबानी जो है उन्होंने कितनी अच्छी स्पीच दी। वो मतलब इतने ज्यादा रिच होने के बावजूद भी उनका दिल इतना ज्यादा नरम है। उन्होंने सब लोगों का शुक्रिया अदा किया और अपने जो मतलब हिंदुइज्म में किस तरह से शादी की जाती है। और आपको पता है कि भाई जब दो मतलब लड़की और लड़के में शादी होती है तो उन दोनों के दरमियान शादी नहीं होती, दो फैमिलीज के दरमियान शादी होती है। दो मतलब आपका पूरा खानदान दूसरे खानदान से जाके मिल जाता है एक हिसाब से। तो वो सारे के सारा अपना कल्चर जो है ना उसके बारे में बता रहे थे और वो अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे कि उनकी वाइफ जो है उन्होंने कितने अच्छे तरीके से भाई अपनी जो ये शादी है ना इसको एक मतलब इंडियन कल्चर में उनको ये नहीं है कि भाई बाहर का कोई कल्चर लेकर तो अपने कंट्री में जो है ना मतलब उन्होंने उस हिसाब से डिजाइन किया। नहीं भाई मैंने देखा है उन्होंने वो मतलब के अपना जैसे इंडियन एक कल्चर होता है ना उसको मतलब दिखाया है। फॉरेन मतलब जो बाहर से जो लोग आए हैं ना, फॉरेनर जो आए थे उनको भी पता चला इंडियन कल्चर के बारे में कि हाँ भाई इंडियन कल्चर ऐसा होता है, ड्रेसिंग ऐसी होती है। और इसके अलावा भाई उनको फूल जिस तरह से लगाए हुए थे, अपना सारा का सारा जो है ना उन्होंने अपना उस हिसाब से हाँ किया। उन्होंने भाई ये नहीं किया कि भाई हम अंग्रेजों का रूप अपना के तो व्हाइट कलर का सब कुछ कर देना। भाई उन्होंने वो किया जो उनको उनके कंट्री को मतलब साबित करे, उनको बताए भाई कि हाँ ये हमारा कल्चर है। और खाने जो डिशेज है ना वो भी हमें अपनी उन्होंने इंडियन भी रखी ताकि लोगों को जो है ना हमारे कल्चर के बारे में पता चल पाए। तो इनकी इस एक शादी की वजह से पूरी दुनिया में अगर कोई इंडिया को नहीं भी था ना जानता तो ये एक शादी की वजह से हमें, क्योंकि सारी मीडिया जो है ना वो कवर करती है कि हमारे ये स्टार्स वहां पे गए हैं, वहां पे ये कर रहे हैं, वहां पे उनकी शादी, तो फिर सबको पता चलता है इंडिया के बारे में। सबका दिल करेगा इंडिया आने के लिए। तो देखना उसने कहना हाँ भाई ना कि हम भाई इतने इतने बड़े स्टार्स वहां पे गए हुए हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो फिर वो भी यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे। तो ये एक शादी जो है ना ये इंडिया को पूरी दुनिया के सामने किस तरह से उन्होंने पेश किया है कि भाई इंडियन कल्चर ऐसा होता है। तो ये चीज देखो। और भाई जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जो जिनको कोई मतलब लोग बोले कि कोई कपड़े नहीं पहना सकता दूसरे, उनको भाई मुकेश अंबानी ने उनकी अंबानीज ने भाई अपने जो इंडियन कल्चर का ये नहीं कोई बाहर से आया तो उसने जो है ना मतलब ऐसी ड्रेसिंग की है। नहीं, उन्होंने जो पजामा और कुर्ता होता है ना उनका वही उन्होंने पहना, लड़कों ने और लड़कियों ने उनका जो लहंगा और साड़ी या जो भी होता है ना वो सब कुछ जैसी भी मतलब ड्रेसिंग उनकी होती है ना वो उन्होंने किया, अंग्रेजों वाली ड्रेसिंग नहीं की। और वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। तो यही एक चीज होती है जो शादी में इम्पोर्टेंट होती है। और उन दोनों की फाइनली शादी हो गई। हमारी तरफ से बहुत ज्यादा मुबारकबाद कि भाई उनको बहुत आज रिसेप्शन है लेकिन हमारी दुआएं तंदुरुस्त। हाँ भाई क्योंकि हमें बोलते हैं कि ये लड़के और लड़का जो है ना मतलब अपने स्कूल टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो हाँ तो तब से लेकर अब तक जो है ना साथ ही है, साथ निभाया। हाँ तो अब जो है जाकर उन्होंने शादी की। और वो ये बता रहे थे कि ये मेरे खानदान की आखिरी शादी है क्योंकि उनकी बेटे की भी शादी हो गई है, बड़े बेटे की भी शादी हो गई है और ये सबसे छोटा बेटा था। तो अब इनके जो बच्चे होंगे फिर उन्हीं की शादी होगी ना। तो अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है लेकिन ये लास्ट शादी थी और ऐसी शादी दुनिया भर में याद रखी जाएगी। ऐसी शादी उन्होंने की है, कभी किसी ने नहीं की जैसी मुकेश अंबानी ने शादी की है ना। दुनिया बादशाह भी नहीं कर सकता।
महंगी तरीन शादी किया भाई। और राम देव क्या, और वो हमें बाबा बगेश्वर धाम सरकार भी आए हुए थे। इसके अलावा वो जो है हाँ पीएम मोदी भी। और वो पता है आपको एक पेट को इस तरह से अंदर ले जाते हैं, हाँ वो भी आए हुए थे, वो सभी आए थे भाई इस शादी। हाँ वो वर्जिश करवाते हैं यार, बड़ा अच्छा लगा। हाँ किस तरह से तो यार बड़ा ही अच्छा लगा ये शादी को देखकर, खास तौर पर स्पीच सुनकर कि भाई इतना ज्यादा बड़ा इंसान होने के बाद हम भी ऐसी शादी में जाए। हाँ भाई जाए और खुद भी करें। और यार पता क्या है, कुछ अमीर लोग होते हैं उनमें बड़ा एटीट्यूड होता है, लेकिन इनमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। उन्होंने सबको अपना मतलब शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आप सब मेरे बेटे की खुशी में शामिल हुए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। तो कितनी बड़ी बात होती है कि लोग तो ऐसी शादी पे जाना चाहते हैं, लेकिन वो शुक्रिया अदा करेंगे आप हमारी खुशी में शामिल हुए। वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है कौन वीडियो में।